The respected Jagannath Yatra Das ji, the respected staff member and your students, good morning to all of you. So really, on this special occasion, that is Mahashivratri, as well as today is also International Women's Day. I would like to extend our best wishes to all. And please, students, don't make the noise. Class 11, please control the things. So one thing I would like to share with you, that it is a very good opportunity for all of us. ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि टुडे वन what we call counselor, as well as having all sorts of spiritual items, which is very much essential for each and every students or each and every individuals. That great person is with us, and I would like to give a little bit hints regarding this great person, Jagannath Das ji. Actually, he is a student of Navodaya Vidyalaya, Maharashtra, and after completion during 1993, he has admitted in JNV in class 6, and after completion, he is in 10th class. Because at that time, in very few places, 11th and 12th was there. So that's why he continued his studies up to class 10, and after that, class 2 of science, as well as what we call his engineering degree, BTech, as well as MTech degree, he has completed from government institution, Maharashtra, and after that, he has got a very noble job, that is lectureship in engineering college. And he was also served as a lecturer in engineer in a very good college, and after completing 10 to 12 years, he has know what is the life, what is the meaning of life, and what is the ultimate aim of life. So there is no any certainty of life, and within very few period or span of life, we should do something for the society, so that each and every individual, thousands or lakhs of people, they will be benefited. They will realize that what is the life, and whatever thing that is coming in our mind, how we can solve it, how we can proceed by taking our life and everything that is there. So now, by not wasting more time, I would like to, on behalf of JNV Talha, Sonpur district, I would like to welcome him to our institution, and also it is a very good opportunity, and I would like to request him to give a few valuable words to our students, so that they will be more benefited, because I know from other schools, JNV Bargarh as well as JNV Dwapada, sir has given very motivational speech to the students, and which is real and complete of our life. So now, without wasting time, I would like to request him to give his speech to our students, so that they will learn regarding the life, regarding the aim of each and every individual of life and everything. Sir, once again, I would like to welcome as well as request for your valuable. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for welcoming me at JNV Talha of Sonpur, district of Odisha state. I feel so happy to be with you today afternoon here. Today is the most auspicious day of महाशिवरात्रि. भगवान शिव जी का बड़ा उत्सव है आज, और हम सब इकट्ठा हुए हैं अपने जीवन के विषय में कुछ चर्चा के लिए. पीछे आवाज आती है? लाउड वॉइस? दिस साइड गर्ल्स? Okay, thank you. So, I thank our dear principal sir for giving me this opportunity to serve you here. Many times students ask me, बच्चे पूछते हैं स्कूल में, सर
आप क्यों आए हैं स्कूल में, नवोदय में क्यों आए हैं? क्योंकि वो लोग व्यक्ति साधु आए हैं, बाबा जी आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? तो हम उनको बोलते हैं कि हम नवोदय ही हैं, इसलिए हम नवोदय के जो सारा स्कूल है पूरे देश में और जो अभी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको अपना मानते हैं। तो हम आपको देखने के लिए आए हैं और आपकी सेवा के लिए आए हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी सेवा दी जाए। जो हमने अपने अनुभव से, अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से जो ज्ञान लिया है, जो अनुभव पाया है, जिससे हमारा जीवन धन्य हुआ है, सफल हुआ है, तो वो ज्ञान आपको भी दिया जाए, क्योंकि सबको आवश्यकता होती है जीवन के विषय में जानने की, सबको आवश्यकता होती है। आजकल की शिक्षा में जो केवल एक बहुतांश व्यावसायिक हो गई है। आज की शिक्षा पद्धति प्रोफेशनल बोलते हैं ना, व्यावसायिक, एक व्यवसाय मिलना चाहिए, एक जॉब मिलना चाहिए, वो हिसाब से फोकस है। इसलिए कहीं ना कहीं जीवन के विषय में कुछ कमी होती है। और कौन सी बात है कि आप तो बोलेंगे नहीं सर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, उसमें तो जीवन की बात आ ही गई। नहीं, जो कुछ बातें हम आजकल पढ़ते हैं वो केवल एक भौतिक जो जीवन होता है उसके विषय में है। भौतिक मतलब क्या है? जो अपना एक शरीर है, एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसके लिए जो आवश्यक है वो हिसाब से हम जीते हैं। लेकिन केवल शरीर पे ध्यान देने से जीवन का समाधान नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अपना समय ज़्यादा नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, आगे पता नहीं कब आएंगे। मैं पूरे देश में जा रहा हूँ। ये मैं पिछले 1 साल में जो गया हूँ उसमें 86 क्या बोलेंगे 85 और 86वां स्कूल है। 86 स्कूल है नवोदय का, जो मैं 8 राज्यों में गया हूँ। उड़ीसा का एक 11th स्कूल है, 11वां स्कूल है, कि मैं जहाँ अपनी इच्छा से बिना कोई अपेक्षा के एक सेवा समझ के हम लोग जा रहे हैं कि जीवन का ज्ञान सबको दिया जाए। तो जो शरीर है वो केवल अपना एक गाड़ी के समान है, फिजिकल बॉडी। वी हैव माइंड, वी हैव इंटेलिजेंस, we have egos, we have our own real self, जिसे बोलते हैं जीव। जीव है तो जीवन है, जीव के बिना जीवन नहीं होता। जब जीव ये शरीर से निकल जाता है, जब जीव आत्मा, क्या बोलते हैं जीवात्मा, जब जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है तो हम बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई। उनका शरीर सामने होता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई हमको छोड़ के चला गया। तो कौन चला गया? कॉमन सेंस की बात है, हम समझते हैं। जो जीव था, आत्मा था शरीर में, जिसके वजह से जीवन था, किसमें? शरीर में, वो चला गया। तो अभी वो शरीर का कीमत क्या हो गया है? शून्य हो गया है। क्योंकि जीवन का जो कीमत है केवल बॉडी से नहीं है, जीवन का कीमत किससे है? जो जीव है अंदर। ध्यान दीजिए, कुछ बहुत आवश्यक बातें हैं समझने के लिए। आज लोगों के पास पैसा है, धन है, अच्छा सुविधा है, सुख सुविधा, लेकिन कहीं ना कहीं मन की शांति नहीं है, मन का, जीवन का समाधान नहीं है, जीवन का आनंद नहीं होता है। क्योंकि आनंद, समाधान, शांति ये चीज़ें बाहर नहीं मिलती, दुकान में, समाज में। ये हमें अपने ही अंदर ढूंढना होता है या लेना होता है। आजकल समाज की ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति हो गई है, लोग केवल बाहरी चीज़ों में ध्यान देते हैं और अपने अंदर जो विशिष्टता है, जो दिव्यता है, वो समझते नहीं हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमें बचपन से
आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। हम सोचते हैं केवल ABCD पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, थोड़ा साइंस मैथ्स हो गया अपना जीवन महान। ऐसे नहीं होता है। विद्यालय का जो उद्देश्य है, विद्यालय का उद्देश्य जो है भौतिक विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या देना भी है। जीवन की विद्या भी देना होता है। इसलिए नवोदय विद्यालय जो है ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को जो अपने सिलेबस है, एकेडमिक्स है, उसके साथ साथ जीवन की विद्या देने का भी विचार किया जाता है। और हमने पाया जब हमको सिखाया गया नवोदय विद्यालय हम जब थे 26 साल पहले, तो जो शिक्षक थे वो ज्ञानी थे, विद्वान थे, आध्यात्मिक मूल्य जानते थे, तो उन्होंने हमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जीवन के विषय में भी समझाया था। और वही आगे हमने जब गीता पढ़ी, भगवद गीता कॉलेज में मुंबई में, तो विशेष अनुभूति हुई कि जीवन क्या है, भगवान कौन है, दुनिया कौन बनाया है, दुनिया कौन बनाया है, दुनिया क्यों बनी है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, जीवन का अपना समाधान कब होगा। ये भी तो सवाल होते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है जो भी पता होना चाहिए जवाब कि सत्य क्या है। इसलिए आज का ये सेशन है, तो थोड़ा भूमिका मैंने बता दिया कि आज का सेशन जो है अपने जीवन के विषय में। आगे की बात कहने से पहले हम थोड़ा 2-5 मिनट जो है भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़िए सब लोग। आज बड़ा पावन दिवस है, भगवान का नाम लेकर थोड़ी प्रार्थना करते हैं। मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और साइलेंस। ओम बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां
श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One more time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You can open the eyes now. Keep the mind peaceful so that we discuss about our real life, happy life. देखिए, हम जितना भी मेहनत लेते हैं, हम जितना भी कष्ट उठाते हैं, वो सबका एक उद्देश्य केवल एक ही है कि हमें अपने जीवन का समाधान हो जाए। दो पल का समाधान नहीं, पल दो पल का खुशी। हम चाहते हैं अनंत समाधान, नित्य आनंद हमें मिले। ये अपनी कामना है, हम सबकी इच्छा है कि ऐसी खुशी हो कि जो नित्य हो, हमेशा हो। एक दो पल की खुशी नहीं है, वो दुख का कारण बनती है। हमें खुशी ऐसी चाहिए जो कभी ना मिटे, हमेशा हो। हमने वो पाया है जब हमें जीवन की विद्या, आत्मविद्या होती है तो हमें चिंता से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। तीन चीज़ें होती हैं। हमें भय होता है किसी चीज़ का, हमें कभी चिंता होती भविष्य की, या हमें किसी बात का दुख होता है। दुख होता है जो हो चुका है, जो नहीं हुआ है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये दुख का बात होता है। ये कब होगा, ये कैसे होगा, क्यों हो, कब होगा नहीं होगा, ये चिंता भविष्य की होती है। और भय वर्तमान में होता है कि कैसे है ना, क्या होगा पता नहीं, चिंता हो। जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय भय होता है, थोड़ा सा हमें डर होता है कि हम हाईवे पे हैं और गाड़ियाँ जोर से चलती है, पता नहीं कोई ठोक देगा, कभी ऐसा होता है, हादसा होता है, तो हमें कभी कभी भय होता है। लेकिन जब जीवन का ज्ञान, जीवन की विद्या यदि होगी तो हमें मन का जो शांति होता है, उसकी अनुभूति होती है कि अपने मन में कभी चिंता का भाव, दुख का भाव, कभी भय नहीं होता है। क्यों? ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कि हम कौन हैं। आप बोलेंगे सर मैं तो, जो बॉडी दिखता है, शरीर, ये मैं हूँ। ध्यान दीजिए, ये शरीर हम नहीं है। शरीर अपना एक गाड़ी है, जब बॉडी अपना गाड़ी। क्योंकि आपको एग्जांपल दिया, किसी की डेथ जब होती है, किसी का मृत्यु जब होता है, डेड बॉडी जो है, मृत शरीर अपने सामने होता है और सभी लोग बोलते हैं दादाजी हमको छोड़ के चले गए, दादाजी छोड़ के चले गए, जबकि उनकी शरीर सामने होती है। तो हम समझते हैं कि जो जीव था, आत्मा, वो कौन थे? दादाजी। बॉडी तो बस अभी कुछ काम की नहीं है, दादाजी चले गए। जो उनकी गाड़ी थी बॉडी, वो कुछ काम की नहीं है,
तो बंद हो गई अभी, क्योंकि जो व्यक्ति था गाड़ी के अंदर वो चले गए। तो ध्यान दीजिए, हम अपनी पहचान जो समझते हैं मैं ऐसा हूँ जो आईने में दिखता है, वो नहीं है। वो केवल अपना जो बॉडी है उसका इमेज है, उसका फेस है। हम जो है, क्योंकि बॉडी हमेशा बदलता रहता है। अब ध्यान आपने अनुभव किया होगा कि बचपन से, जन्म से लेकर ये शरीर हमेशा बदलते आया है। आपका फ़ोटो देखिए, बचपन का फ़ोटो होगा, जन्म का फ़ोटो होगा, फर्स्ट है ना, पहला जन्मदिन, फर्स्ट बर्थडे फ़ोटो होगा। वो फ़ोटो और आज की फ़ोटो तुलना कीजिए, कितनी समानता है। मैचिंग होता है, मैचिंग। बॉडी हैज़ चेंज इन साइज, बॉडी हैज़ चेंज इन फॉर्म, body has changed in the shape, body has changed look, but the person in the body, the individual, the you in the body has not changed. आपकी माँ, पिताजी, बाबा क्या बोलते हैं? जो अभी नवोदय में गई हैं बेटी, ये वही थी जो LKG में, UKG में जो ना जन्म लिया था, वो वही है। जबकि शरीर बदल गया है, कोई मैचिंग नहीं है दो बॉडी में, बचपन का बॉडी, अभी का बॉडी। वैसे बच्चों का भी, कि माता पिता बोलते हैं हमारा बेटा जो है अभी वही है जो गांव के स्कूल में था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो नवोदय में गया है अभी वो अलग है, और जो पहले हम लोगों के साथ था LKG UKG में वो अलग था। ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अपनी पहचान, अपने संबंध बॉडी से नहीं, केवल अपने संबंध आत्मा से है। इसलिए कभी देखिए, किसी व्यक्ति का हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, कभी भी किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पाँव चला जाता है, केवल शरीर का अंग जाने से, कोई अंग जाने से व्यक्ति नहीं बदलता, व्यक्ति वही रहता है। कभी कभी दोनों हाथ, दोनों पाँव चले गए, दोनों हाथ चले गए, ऐसे होता है। लेकिन जो संबंध होते हैं अपने फैमिली से, समाज से, वो बने रहते। क्यों? व्यक्ति है, आत्मा है। तो अपनी जो पहचान है, ध्यान दीजिए, अपनी पहचान ये बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान ना मन से है। जो मन चंचल है, मन का स्वभाव क्या है? चंचल था। मन एक जगह पे ज़्यादा समय रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खुशी मन को चाहिए, जो आनंद मन को चाहिए, समाधान चाहिए, वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मन दौड़ता रहता है, मन भागता रहता है, यहाँ खुशी मिले, वहाँ खुशी मिले, कहाँ खुशी मिलेगी। इस चक्कर में मन हमेशा चंचल होता है। लेकिन जब अपने मन को अच्छा समाधान, अच्छा आनंद मिले, जो नित्य हो, दिव्य हो, तो मन शांत हो जाता है। जब तक मन को वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा, तब तक मन शांत होने वाला नहीं है। अपनी पहचान बुद्धि से भी नहीं है। सबके पास बुद्धि तो है, नवोदय के बच्चों के पास तो बहुत बुद्धि होती नहीं। बच्चों कितनी बुद्धि? छोटी ज़्यादा है, कम बुद्धि, ज़्यादा बुद्धि है? बच्चे तो कम कभी नहीं बोलेंगे कि नवोदय के बच्चे हैं। बच्चों को बहुत बुद्धि होती है, लेकिन कभी कभी ये बुद्धि चलती है, कभी कभी नहीं चलती। एग्ज़ाम के समय ऐसे होता है, कभी सर वो जो पढ़ाई किया था याद ही नहीं आया, वो हमें समझ में ही नहीं आया, वो सवाल के क्वेश्चन क्या थे हमें ना जवाब नहीं आया। तो कभी कभी अपना दिमाग चलता है, कभी नहीं चलता है। तो अपनी पहचान दिमाग से भी नहीं है, बुद्धि से भी नहीं है, न कि अहंकार। अहंकार मतलब अपना जो ये होता है स्टेटस, पद, डेजिग्नेशन, जो बदलता रहता समय के साथ, आई कार्ड अपना। तो अपना अहंकार, अपना जो पद है कि मैं कौन हूँ, वो भी बदलता रहता है, बहुत ही चीज़ जो है। लेकिन जो जीव है, आत्मा, जो भगवान का दिव्य अंश है, हम जब बोलते हैं ना, कभी स्कूल में प्रेयर बोलते हैं,
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी सुना है आपने? कभी गाया भी होगा? हाँ, तुम्ही हो साथी, बोलिए, तुम्ही सहारे, गाओ गाओ। जोर से गाइए। आपका भाव, आपकी आवाज़ बहुत शुद्ध है कि आप जो भगवान के लिए बोल रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ आप ही सबके माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। केवल उतना नहीं, आप हम सबके साथी भी हो, साथी, जीवन साथी और जीवन का सहारा भी हो। देखिए, यदि हम इतनी बात समझ जाएंगे, हम बोलते तो हैं, गाते तो हैं, कभी पढ़ते भी हैं इतने सुंदर सुंदर सुविचार, लेकिन इतना सोच नहीं पाते इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है, हम समझ नहीं पाते। छोटी आयु में इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम खेलने में मस्त होते हैं। हमने जब पहली बार नवोदय की गेट पर लिखा हुआ देखा और पढ़ा, शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए, क्या लिखा होता है? कम टू, यस, कम टू लर्न एंड देन गो टू। आपने समझा होगा, ओके, हम भी सीखेंगे, लेकिन क्या सीखना है, अच्छा या बुरा, वो भी एक बड़ी बात है। कभी कभी बच्चे जो हैं गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं, क्योंकि दिमाग जो है लगाते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, जो दिखता है किसी का फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। तो बच्चों, यदि हम ये समझेंगे कि हम सबका एक भगवान है, जो बोलते ना, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ की हम, धरती पूजा स्थान। आप जानते ही बात को ना, हम तो रोज गाते हैं नवोदय प्रेयर में, हम ही नवोदय हो, हम नवयुवती नहीं भारती नहीं आती। तो देखिए, जो हम गाते हैं उसका मतलब थोड़ा ध्यान देंगे ना तो बड़ी शक्ति मिलेगी, बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं? रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक विश्वास हो, भगवान हो, और हम धरती संताने धरती माँ की हम, धरती पूजा स्थान। तो जो भूमि है, भूमि धरती, उसको माता बोलते हैं, भू माता, मतलब भारत माता की बोलते ही नहीं। यदि माता है तो पिता भी चाहिए, तो पिता कौन है? पिता भगवान जगन्नाथ है, जगत का नाथ आप जानते हैं, बड़ी बड़ी आरती जगन्नाथ की, चक्का डोला, चक्का डोला कि भगवान जगन्नाथ जो है पूरे जगत के नाथ है, सभी शक्तियों के स्वामी हैं, अपने भी साथी है। बच्चों ध्यान दीजिए, यस, नो टॉकिंग, बॉयज नो टॉकिंग, हियर लिसन, डोंट डिस्टर्ब, बी क्वाइट। जीवन की बात है। देखो, यदि आपको बताया जाए
कि आपको केवल सुनने से, यहाँ केवल थोड़ा समय सुनने से जीवन का सभी सुख, जीवन का सभी आनंद, समाधान, सभी समस्याओं का उपाय मिल जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है ध्यान देगा। यदि केवल शांति से सुनने से, ध्यान से समझने से यदि अपनी सारी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी तो क्यों ना हम सुने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है सुनने में, इक्वेशन समझ में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जीवन की बात, अपने जीवन की बात यदि बुद्धि है तो समझनी चाहिए। ये तो हम बुद्धू बन जाएंगे और केवल, है ना, काल्पनिक समस्याओं में फंसे होंगे। बच्चों, समस्याएं जो होती है बाहर नहीं होती है, दुख जो होता है, चिंता बाहर नहीं होता है, और अपने मन की कल्पना होती है। कोई बोले सर को, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्या। यदि सर बोले कि बेटा दिखा, बोलो क्या समस्या है, दिखाओ मुझे क्या समस्या है, आपको क्या दुख है, दिखाओ, दिखा पाओगे? दिखा नहीं पाओगे। ये समझ, ये अपना विचार है, ये अपना कल्पना है कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये समस्या है। ये अपना देखने का एक अंदाज है या एक अपना विचार है। यदि हमें ज्ञान होगा तो हम कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और भय होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम किसके हैं वो भी समझिए। हम भगवान के हैं, ये समझने की बड़ी बात है। हम सोचते हैं सर एक जॉब मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। आज देखिए समाज में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन जीवन में समाधान, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? कुछ तो कमी है। वो कमी क्या है? उन्होंने जो आत्मा का संबंध है, नित्य संबंध भगवान के साथ, वो जाना नहीं है, वो माना नहीं है, इसलिए दुखी है। क्योंकि इस जगत में आप चाहे कितना बड़ा बन जाओ, यदि आप इतिहास में जाओगे, इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। लंकेश कौन था? रावण, लंकापति रावण। ये कहानी आती है 10 लाख साल पहले। कितने? 10 लाख। जो हुआ है रामायण की कथा में लंकेश का जो आता है वर्णन, जो 10 लाख साल पहले हुआ है। भगवान श्री राम जी ने जो जन्म लिया था अयोध्या में, वो काल था 10 लाख साल पहले। युग का नाम था त्रेता युग। ये कौन सा युग है अभी? कली युग। इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। और उसके पहले था त्रेता युग, और उसके पहले होता है पहला युग सतयुग। 3 युगों की बात है। ये चौथा युग है कलियुग। और साइकिल होती है, साइकिल में चौथे युग के बाद कौन सा युग आएगा? पहला आएगा, सतयुग आएगा। अभी उसको कितना साल बाकी है? 4 लाख साल बाकी है। अपने शास्त्रों में बताया गया है कलियुग जो है, कलियुग ये युग जो है 4,32,000 साल का होता है। कितना? 4,32,000। अभी कितने साल हुए हैं? 5,200 साल हुए, लगभग 5,200 साल। ये कलियुग चालू होकर, कलियुग के शुरुआत में भगवान का एक अवतार होगा, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध अवतार, ये भविष्य किया गया था, जो हो चुका है। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे। और कलियुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेके आएंगे, ये भी भविष्य किया गया है श्रीमद् भागवत कथा में और भविष्य पुराण में। अभी आप लोग कभी देखे ना पढ़े हैं तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन जब हमने 22 साल से भागवत की कथा, भगवद गीता, अपने उपनिषद, अपने जो शास्त्र हैं वो पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो हमें पता है, विश्वास है कि बच्चों जो लंकेश था, लंकापति रावण, इस जगत में सबसे शक्तिशाली, सबसे पंडित, बड़ा विद्वान, बड़ा
सत्ता वाला, बड़ा धन वाला, संपत्तिवान था, बलवान था, लेकिन उसे भी अपने जीवन का समाधान, शांति नहीं था। क्यों? उसने भगवान को नहीं माना, भगवान की सत्ता को उसने माना नहीं, स्वयं भगवान बनना चाहा। और लंकेश ने स्वयं भगवान की जगह लेने की इच्छा की थी, इसलिए उसे समाधान नहीं हो पाया। देखिए, हम जो बोलते हैं सबका मालिक एक है, तो भगवान है जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, हम सबको साथ देते हैं, संभालते हैं, तो भगवान है। तो हम जो बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये भी गाते नवोदय में, हमने पहली बार नवोदय विद्यालय में सुना था ये प्रार्थना, तो बड़ा बोध हुआ था, बड़ा अच्छा आनंद लगा था कि कोई दाता है जिसने जीवन दिया है, जो हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे सकते हैं, जो हमें एक दिशा दे सकते हैं, जीवन का आनंद, सुख दे सकते हैं। जो बोलते हैं दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। आगे, बैठो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई। आगे क्या है? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जब तो बहारे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। देखिए, अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़कर हमें अपने जीवन का जो समाधान है, जो दिशा है, जो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, वो नहीं मिलेगा। वो पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्यों? वो अपना एक ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यकता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। देखिए, एक बोलने की बात नहीं है, बस ये बोलना है, गाना, एक अपने स्कूल का एक शेड्यूल है, बस बोलना है नाम के लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी बुद्धि से समझना चाहिए। हम शक्ति फिजिक्स से नहीं मांग सकते, वो फिजिक्स हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, वो एक जानकारी है। फिजिक्स क्या है? इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि वो कैसे क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल लॉज क्या होते हैं, वो जानने की बात। लेकिन जो शक्ति, बुद्धि का विकास, आत्मा का समाधान, उससे होने वाला नहीं है। क्यों? तो भौतिक चीज़ें हैं। वो क्या है? भौतिक वस्तु है, भौतिक चीज़ें हैं। अपना जीवन जो है भौतिक नहीं है, अपना जीवन क्या है? आध्यात्मिक है, अपना जीवन दिव्य है। समझते हैं आप बात को? लाइफ इज डिवाइन, लाइफ इज डिवाइन व्हाई? बिकॉज वी आर the divine soul, we are the divine soul in the body। भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान बताते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, इस जगत में जितने भी जीव है, हम कौन है? जीव है, जीव, आत्मा, क्या बोलते हैं? जीवात्मा, दोनों मिले जीवात्मा, लिविंग बीइंग। बॉडी इज ओनली व्हीकल, बॉडी इज अवर व्हीकल which keeps changing, which keeps changing with time. One day it is born,
one day it will be gone. Body is born one day, body will be gone other day, some day. But the soul, the divine soul in the body is deathless, is birthless, is eternal. क्या बोलते हैं? Eternal, immortal. देखिए, बच्चों को जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा है कि नहीं? थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ के बच्चों को बोलो, हाँ, यस, क्या हमेशा के लिए नहीं सर, हमें खुशी भी चाहिए, आनंद भी चाहिए जीवन में, समाधान भी चाहिए। देखिए, किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा नहीं है, बच्चों को है बूढ़ा बनने की इच्छा नहीं। बीमारी किसी को चाहिए, डिसीज, सर थोड़ा कैंसर, थोड़ा टीबी मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। कोई ऐसा होगा? क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो है आत्मा, वो कभी बुरा नहीं बनता है, वो कभी बीमार नहीं होता है, वो कभी बदलता ही नहीं है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका कभी मृत्यु। देखिए, थोड़ा बेसिक ज्ञान होगा जीवन में एक बार कम से कम, तो हमें जो चिंता होती है, कभी भविष्य की चिंता होती है, बुढ़ापे की चिंता होती है, बीमार की चिंता होती है, तो हमें वो नहीं होगी। क्यों? हम जानेंगे कि हम जो है भगवान के बच्चे, मन के सच्चे, तो जो हम समझेंगे कि हम भगवान के हैं, तो हमें चिंता भय नहीं होगा, क्योंकि अपना जीवन क्या होगा? नित्य। आत्मा का जो जीवन है नित्य है। तो गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, पीछे बोलिए, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय, उसका 7वां श्लोक है। तो सुनिए, पीछे बोलिए, ठीक है? ममैवांश जीवलोके, ममैव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति स्थाने कर्षति। तो भगवान बताते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, ये कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः, कि जीव उनके, भगवान के नित्य सनातन अंश है। देखिए, जो भगवान के गुण है ना, वो हम में भी है, आत्मा में, क्योंकि अपना संबंध है। भगवान का गुण क्या है? स्वभाव सच्चिद आनंद। क्या बोलते हैं? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत, नित्य। चित मतलब चिन्मय। भगवान ज्ञानमय है। भगवान को सभी का भूतकाल, सभी का वर्तमान काल और सभी का भविष्य पता है। सर्वज्ञ है भगवान। चिन्मय, लास्ट में क्या है? आनंदमय। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय है। और हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश है, इसलिए वो भगवान के गुण स्वभाव हम में भी है, आत्मा में। क्या? नित्यता, नित्यता, सत्य, शाश्वतता। सेकंड क्या है? चिन्मयता, मतलब ज्ञान। आत्मा में नित्य ज्ञान होता है। अभी यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है, किताब खोलना पड़ता है। क्यों? अभी अपना आत्मा का ज्ञान जो है ढक गया है, क्योंकि हमने जन्म लिया है। ये बॉडी जो है, हमको बॉडी मिली है, जिसकी वजह से जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो छिप गया है, ढक गया है, हम भूल गए हैं। और आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? आनंदमय। देखिए, इतना हम जो चिंता, कष्ट, भय या मेहनत लेते हैं, कुछ सुख मिल जाए, कुछ पाले, कुछ समाधान हो जाए, वो सब कुछ यदि हम अपने मूल स्वरूप को जानेंगे, आत्मा के,
और भगवान के साथ अपना संबंध है वो जानेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अपनी बुद्धि जो है बहुत समय सोई होती है, वो जग सकती है। तो मन में जो हमेशा चंचलता और दुख होता है, भय होता है, वो निकल जाएगा। तो बच्चों, अभी स्थिति क्या अपनी भगवान बताते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। अपनी 5 इंद्रियां होती हैं ज्ञान लेने के लिए। पता है सबको 5 ज्ञान इंद्रियां जिससे हम ज्ञान लेते हैं? कौन कौन सी इंद्रियां हैं 5? आंखें, कान, जिह्वा, स्किन, त्वचा, क्या चमड़ी बोलते हैं। इन 5 इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। मन क्या है? इनका राजा है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। माइंड इज नोन एज द सिक्स्थ सेंस। जो कभी बच्चे बोलते हैं माई सिक्स्थ सेंस इज टेलिंग मी, वो क्या है? अपना मन है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। अभी अपनी स्थिति क्या है? अपनी स्थिति है प्रकृति स्थाने कर्षति। हम अभी इस जगत में जन्म लेने की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। कैसा संघर्ष? कठिन संघर्ष। किसके लिए? केवल जीने के लिए। जो बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हम कठिन संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई निश्चित जीवन नहीं है। आत्मा का जीवन नित्य है, आत्मा का जीवन नित्य है। लेकिन जो बॉडी मिला है अभी, फिजिकल बॉडी, शरीर, ये बड़ा कमज़ोर है, ये बड़ा अनिश्चित है। जो बोलते हैं कि कोई पल में ये शरीर नष्ट हो सकता है। कभी हम देखते हैं कहीं शॉक लगने से, कि पानी में डूबने से, ध्यान दीजिए, कहीं आग लगने से, कहीं कटने से शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जीव है, देखिए आज बच्चों की ये समस्या है कि शांति से सुनने का भी उनको क्षमता नहीं है, बड़ी समस्या है। इतनी चंचलता, इतना जो हो गया है स्वभाव की, अपने जीवन के विषय में भी सुनने की उनको कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। जो मौका मिलता है सब कुछ हमें पाने का, हम उसको खो देते हैं। बाद में पछताते हैं कि जब हमें सब कुछ मिलने वाला था हमने ध्यान नहीं दिया। बच्चों, ये छोटी बात नहीं है कि जिसके लिए हमने अपना जीवन दिया है। कि ज्ञान का प्रचार करने के लिए, हम कमाने के लिए कोटि कमा सकते थे, हम कमाते भी थे। लेकिन जब समझ में आया कि आज समाज की आवश्यकता क्या है, हम भी अब अपने एक ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ के आनंद ले सकते थे। जब हमने देखा कि आज समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान अपने पास है, अपने पास ज्ञान है। जिस ज्ञान से हमने समाधान पाया है उस सबको दिया जाए तो सबका जीवन महान हो सकता है, समस्या मुक्त हो सकता है। केवल एक जॉब आपको मिलने से आपका जीवन का समाधान नहीं होगा। आज जिनके पास जॉब है वो कहाँ सुखी है? सुबह 8 बजे जाते हैं कंपनी में, रात को 8 बजे आते हैं। मुझे बताइए, 12 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करने से किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता है, तकलीफ ही होती है। तो जो सोचेंगे ना जॉब मिलेगा तो समाधान होगा, सुख मिलेगा, ये भ्रम है। जॉब करना है लेकिन ज्ञान के साथ। केवल उससे नहीं होगा, केवल सर्टिफिकेट मिलने से आपका जीवन सुखी नहीं होगा। जीवन का सुख मिलता है अपने जीवन को समझने से, और समझने के लिए क्या चाहिए? दिव्य ज्ञान चाहिए जो भगवान दिए हैं। तो इसलिए उस ज्ञान को हम बांटने के लिए अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से पूरे देश में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, बस अंतिम 5-10 मिनट है, तो उससे मुझे भी खुशी होगी। मैं जो देने के लिए आया था, एक सेवा, वो बच्चों ने लिया, बच्चों का कुछ फायदा होगा, ये मुझे विश्वास आनंद देगा। हम आपको अपना मानते हैं, हम इतने दूर से आपके लिए आए हैं, कोई अपेक्षा नहीं है कि आपसे कुछ लेना है या किसी से लेना है।
हम सेवा के लिए आए। क्यों? हमें नवोदय विद्यालय ने दिया। 26 साल के बाद भी हम नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं। क्यों? वो कृतज्ञ भाव है कि हमें दिया गया और उन शिक्षकों का उपकार, नवोदय विद्यालय का उपकार, तो हमें कुछ सेवा करना चाहिए, ये भावना में हम हैं। तो बच्चों जो बोलते हैं लाइफ वैल्यूज़, जीवन मूल्यों का बड़ा आवश्यकता होता है, तो सबसे बड़ा जीवन मूल्य है कृतज्ञ भाव, कृतज्ञ होना। जो हमें कुछ दिए हैं, संभाले हैं कुछ, तो उसका हमें ध्यान होना चाहिए, उनके लिए हम कृतज्ञ होने चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए। कि नवोदय विद्यालय में जो सुविधा सब मिलती है वो अपना अधिकार नहीं है, अपना सौभाग्य है कि केवल एक एग्ज़ाम देने से हमें ये मौका मिला है, तो अपना सौभाग्य है। अपने सौभाग्य को समझकर कृतज्ञ होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति सम्मान होना चाहिए। ये शिक्षक 24 घंटे हमेशा हमें ध्यान देते हैं, संभालते हैं, जो भी आवश्यक सुविधा देते हैं। तो माता पिता जैसे ही हमें यहाँ पे सब प्रेम देते हैं, तो उनको माता पिता जैसे समझना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक है। यदि हम उनको सम्मान नहीं दे पाएंगे तो हम उनसे ज्ञान ले नहीं पाएंगे और अपना जीवन महान नहीं होगा। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि अपना जीवन बड़ा भाग्यवान है कि हम नवोदय विद्यालय में आए हैं। तो इस अवसर का हमें पूरा लाभ लेना है और आज जो मौका मिला है जीवन के विषय में समझने के लिए, आप देखिए भगवान महादेव, भगवान शंकर, आज उनका उत्सव है। आपने फोटो देखी होगी, उनकी मूर्ति भी देखा होगा, मंदिर में होता है। तो भगवान महादेव ये हमेशा ध्यान में होते हैं। आपने देखा होगा ना, महादेव ध्यान में होते हैं। भगवान शिव जी सबसे महान योगी है, ध्यान योग में होते हैं। और किन पे ध्यान लगाते हैं? स्वयं शंकर महादेव भगवान श्री राम पे ध्यान लगाते हैं। अभी आपने कभी उनके हाथ में जप माला देखी होगी। भगवान शंकर जी के हाथ में जप माला होती है। वो जप माला पे भगवान का नाम जपते हैं। और एक बार देवी पार्वती ने पूछा कि स्वामी, पूरा दुनिया आपका नाम जपता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप किनका नाम जपते हैं? पूरा दुनिया आपके ऊपर ध्यान लगाता है, आप भुवनेश्वर है, आप किसका नाम जपते हैं? तो शिव जी बोलते हैं, हे देवी, मैं उन परम सत्य भगवान श्री राम का नाम जपता हूँ, जो आनंद के सागर है, सर्व आकर्षक है, सर्व सुंदर है। तो भगवान राम जी की सेवा के लिए यही महादेव जी हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का चिंतन, नाम, तभी हनुमान जी का जीवन इतना महान है। माता देवी सरस्वती जो विद्या की देवता है, आपने देखा होगा उनके हाथ में भी जप की माला होती है। ब्रह्मदेव, वो भी हाथ में जप माला लेके भगवान का नाम जपते। क्यों? भगवान अपने माता पिता है। जैसे छोटा बच्चा हमेशा माँ और पापा, आजकल मम्मी पापा, हाँ, यही बोलते रहते हैं। छोटे बच्चे जो है अपने माँ बाप का नाम लेकर सब कुछ पाते हैं। वैसे ही जब जानेंगे हम सभी जो जीव है, आत्मा, उनका नित्य माता पिता, परम पिता भगवान है, तो उनका नाम लेने से हमें भगवान का क्या मिलता है? आश्रय मिलता है, शक्ति मिलती, कृपा मिलती है। और वो जो सौभाग्य है कि केवल मनुष्य के लिए है। पशु पंछी, बाकी जो जीव है, ये जीव भगवान को समझ नहीं सकते। क्यों? उनको बुद्धि नहीं है। वो केवल जो अपना शरीर मिला है, शरीर का सुख के लिए वो सोचते रहते हैं, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, शरीर का सुख कहाँ मिलेगा, ये पशुओं का विचार। लेकिन मनुष्य जो है अपनी दिव्य बुद्धि से, उच्च बुद्धि से समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर में जो जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो है। इसलिए हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़कर जीवन का सारा समाधान पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। अंतिम बातें बोलता हूँ, बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ।
बच्चों की जो समस्या होती है, सर हमें मन जो है पढ़ाई में लगता नहीं है, अच्छा इतना हमें उत्साह नहीं आता पढ़ने के लिए, मन यहाँ वहाँ भटकता है, जो पढ़ते हैं वो ध्यान में नहीं होता है। ऐसी समस्या कभी आती है बच्चों को यहाँ पे? आती है? पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जो पढ़ते हो याद नहीं होता है। ये सब जगह समस्या है, कॉमन समस्या सब जगह, कोई आपकी नई नई इसे शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्यों? ये दुनिया का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। आपको जो बताया मन क्या है? चंचल। लेकिन जब हम थोड़ा ज्ञान लेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। लाइफ इज नोन एज जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। क्या बोलते हैं? जीवन को एक सुंदर सफर है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी। जीवन क्या है? एक सफर है, सुहाना सफर। क्या बोलते हैं? जीवन एक सुहाना सफर है। एक समय चालू हुआ है, एक जगह से हम सफर में निकले हैं और एक जगह सफर खत्म हो गया। तो हमें ये पता है क्या कि ये सफर कहाँ से चालू हुआ है? आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? बोलिए, आप स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? कहाँ से आए हैं? किसके? आप अपने घर से आए ना? आपको याद है या भूल गए अभी? तो कैसे भूलेंगे? भूलेंगे तो फिर है ना, कैसे जिएंगे? आपको याद है कि नहीं? यस, आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, सब कुछ नवोदय विद्यालय में आनंद लेते हैं, लेकिन अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने गांव को, अपने घर को भूल नहीं सकते। लेकिन अपने जीवन के विषय में ऐसा हुआ है, हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हम कहाँ से आए हैं ये भूल गए हैं। इसलिए भगवान जो है हमें बताने के लिए कि हम सब कहाँ से आए हैं, वेद दिए हैं, गीता दिए हैं, भागवत दिए हैं, वैदिक साइंस दिए हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं। देखिए, जन्म से पहले 9 महीना हम माँ की गर्भ में होते हैं, माँ की कोख में होते हैं 9 महीना। माँ को याद है, लेकिन हमें याद जन्म के बाद 2-3 साल हम माँ के हाथों में थे, माँ की गोद में होते हैं 2-3 साल, वो हमें याद, माता को याद है। तो बच्चों वैसे ही हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो हम जन्म से पहले कहाँ थे, हम कहाँ से आए हैं, अभी याद नहीं है, क्योंकि वो अपना क्षमता नहीं है, हम भूल चुके हैं। इसलिए भगवान जो है मैं जो बताया आपको, ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। ये जीव सभी भगवान के धाम से आए हैं। धाम का नाम क्या भगवान का? वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, भगवान श्री नारायण का धाम, विष्णु भगवान का धाम, जगन्नाथ का धाम, वैकुंठ धाम। तो हम वहाँ से आए हैं। अब देखिए, आप जो गांव से आए हैं, आपको याद है, इसलिए छुट्टी लगने के बाद, छुट्टी होने के बाद, वेकेशन के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद आपको जाने की इच्छा होती है ना? नहीं होती है? तो बहुत इच्छा होती है सर। हम 2-3 दिन से पहले बैग पैक करते हैं, कपड़ा अच्छे से तैयार करते हैं, अभी गांव जाना है। लास्ट पेपर जैसे ख़त्म होता है, कभी कभी भोजन भी नहीं लेते सर, हम सीधा निकल जाते हैं। उस दिन लंच भी नहीं लेते हैं एग्ज़ाम के बाद, बोलने दिखा। तो इतनी हमें गांव जाने की क्या होती है? इच्छा होती है, आनंद होता है, उत्साह। क्यों? अपना काम है। बच्चों वैसे ही हम जो दुनिया में आए हैं, यदि हमें पता होगा हम कहाँ से आए हैं, तो हमें दुनिया से जाते समय दुख, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। यही बात है बस। आज पूरे दुनिया में लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से, इसलिए हमको भय होता है, मृत्यु का भय होता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, भूल गए हैं। लेकिन जब ज्ञान होगा तो भगवान बताएं कि जीवन क्या है? एक सफ़र। हम कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से। तो हमें गाड़ी मिली है, अंतिम 2 मिनट, गाड़ी मिली है। बॉडी क्या? अपनी बॉडी अपनी गाड़ी है, जीवन के सफ़र। किसी को कुत्ते की बॉडी मिली है, किसी को गधे की मिली है, किसी को बंदर की मिली है, किसी को कौवा का शरीर मिला है, किसी को कीड़े का मिला है। ये सब क्या है? गाड़ी के मॉडल। ये सब क्या है? गाड़ी के कितने मॉडल होते हैं आपको?
इस पूरे ब्रह्मांड में कितने मॉडल है? 84 लाख। 84 लाख प्रकार की गाड़ियाँ हैं, मॉडल, कीड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीव हैं। तो इन सभी जन्म लेकर हम मनुष्य बने हैं। अपने शास्त्र बताते हैं जीव आत्मा जो है ये लाखों जन्म लेकर इवॉल्व होता है तो अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, जिससे हम भगवान का आत्मा ज्ञान लेकर भगवान से जुड़ सकते हैं और जीवन के समाधान पा सकते हैं। बॉडी अपनी गाड़ी, अपने जो सेंसेस है, सेंसेस, वी हैव सेंसेस, सेंसेस आर आवर व्हील्स। जैसे गाड़ी में क्या होते हैं? चक्के। गाड़ी में होते हैं, ध्यान दिए, चक्के। चक्कों पे लगता है ब्रेक, चक्कों पे लगता है ब्रेक। वैसे अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस ऊपर, सेंसेस के ऊपर जो अपनी इंद्रियां हैं, ब्रेक लगता है किसका? मन का। मन एक ब्रेक है जो सेंसेस का क्या है? राजा है। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी समझने की बड़ी बात है। सीखने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, नहीं। कहाँ भी हाथ लगा सकते हैं, नहीं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो ये सब कुछ जो है ब्रेक लगाना है सेंसेस के ऊपर। कौन लगाएगा? मन। मन का ब्रेक, मन का संयम। कैसे होगा? अपने आप नहीं होगा। अंतिम 2 मिनट ध्यान दीजिए। मन का ब्रेक कौन लगाता है? बुद्धि। जैसे गाड़ी में चक्कों पे ब्रेक अपने आप नहीं लगता। कौन लगाता है ब्रेक? गाड़ी का ड्राइवर। कौन लगाता है? यस। वैसे अपने जीवन की गाड़ी में अपनी मन के ऊपर, मन जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर संयम जो मन का ब्रेक कौन लगाएगा? अपनी बुद्धि। कैसे लगाएगी? ज्ञान लेकर। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, जीवन का ज्ञान कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फायदा किसमें है, नुकसान किसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन जीवन के विषय में भी सही गलत, अच्छा बुरा, ये बहुत सीखना आवश्यक है। तो बुद्धि से ज्ञान लेकर हम मन का ब्रेक लगा सकते हैं। कहाँ पर? अपनी इंद्रियों पर संयम पा सकते हैं। अंतिम बात ये है, हम कौन हैं? ये जीवन के सफ़र में हम कौन हैं? सवारी है, हम पैसेंजर है, यात्री है, जो कहाँ से आया है? भगवान के धाम से। और हमें कहाँ जाना चाहिए अंत में? भगवान के पास। इसलिए बोलते हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतम। तो इसका मतलब वही होता है, गमय मतलब जाओ, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। तो जो बताते हैं गमय, ये वेद वाक्य हैं, वेदों के वाक्य हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा अमृतम गमय। गमय मतलब जाइए। कहाँ जाइए? आप जहाँ से आए हो वहाँ जाइए। आप लोग स्कूल में कहाँ से आए हो? आपको जाने के लिए अच्छा लगता है ना? हमेशा के आप रहोगे स्कूल में। तो वैसे ही दुनिया में जो है बच्चों, जब तक हैं आनंद लेना है, अच्छा बनना है, सीखना है, समाधान पाना है। जब जाने का समय आए तो कहाँ जाना है? अब अपने गांव। भगवान का धाम जो है वो अपना गांव है, हमें समझना चाहिए। भगवान अपने कौन है? माता पिता है। तभी आपको सब कुछ शक्ति बुद्धि भगवान से मिल सकती है और जीवन को महान बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, टू शेयर सम नॉलेज विद यू। विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। If you have any questions, any doubts, any comments, you can ask now. You can say now, comments. If not now, I'm there till tomorrow morning. Till tomorrow morning, I'm there in campus. मैं कल सुबह तक मैं यहाँ पे हूँ कैंपस में, और आप यदि मुझसे मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
Good afternoon, everyone. I feel privileged to propose a vote of thanks in this meeting. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to Jagannath sir for his valuable words to all of you. I hope that he has been able to instill a sense of spiritualism in all of you, and you all must have learned a lot of things which is very essential in Navodaya Vidyalaya system these days. And sir himself is also a Navodaya. Please be silent and try to listen. Only 1 or 2 minutes. As a Navodayan, I feel that he was able to have a heart-to-heart connection with you. I felt this because when he recited some of the bhajans that are everyday sung in the Navodaya system, you also started reciting with him in a very smooth manner. So I felt that he was able to connect with you in a very smooth manner. I would like to extend my heartfelt thanks from our Navodaya family, sir. And I hope that our students will be able to learn a lot from these lessons of life. In class 6, we also have a lesson, Who I Am. So I feel that whatever speeches are gave here, that moved around this question, who I am. It is very necessary that all of us should know who we are. Then only we can learn the lessons of life, and we can go through the journey of life very smoothly. Once again, I extend heartfelt thanks from our institution, and I hope that whenever you find time, please do come to our institution again. Next, I would like to extend up my thanks to Principal Sir for coordinating the meeting so smoothly. I extend my thanks to all the staff members, especially Murthy Sir and DV Singh Sir for their sitting arrangement and PA system. Most importantly, our students who deserve heartfelt thanks because of their patience for this 1.5 hour or whatever that they listened to our sir and learned a lot of things. And last but not the least, all the members who are directly or indirectly involved to make the meeting successful, I extend my thanks to all of you. Thank you all.